اب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی او دی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ۔ ماں آج مالا کا ماں اک مالا کا وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ میں کیا مثال دوں، کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں، کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے، کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن۔ کوئی ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں۔ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے،
मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। मैंने कहा हुजूर ने ना खूबसूरती का उन्वान बदल दिया। लोग जिसे खूबसूरती समझते थे हुजूर ने उस उन्वान को बदल के रख दिया। वो बिल्कुल मानवियत जाज़बियत अलग तब्दील कर दी। कभी पसीने से भी लोगों ने फैज लिया है, लेकिन यहाँ रंग बदल दिया ना, उन्वान बदल दिया ना, नबी करीम ने तब्दील कर दिए ना सारे अहवाल दुनिया के। कहते मेरे हमारे घर में हुजूर कभी कभी आराम करते थे। मेरी वालदा जिस दिन पता होता हुजूर यहाँ आराम फरमा होंगे, चमड़े का बिस्तर बिछाती। अब चमड़े का बिस्तर हुजूर के लिए फरमाते चमड़े का बिस्तर बिछता। जब हुजूर आराम फरमा होते तो पसीना भी आता, और वो पसीना कभी कभी यहाँ चमकता। कहने दो ना मुझे मोक चंद बदर शाशानी, ऐ जे मत्थे चमक दी लाड नौरानी। वो कभी कभी पसीना ना हुजूर के रुखे नूर पर चमकता, बाजुओं पर चमकता, फिर उसके चंद कतरे ना वो चमड़े के बिस्तर पर भी गिरते। कहते हुजूर उठ के चले जाते तो मेरी अम्मा जल्दी करती, वो हुजूर का सारा पसीना संभाल के बोतल में डालती। मैं कहता अम्मा इसका क्या करना है, तो अम्मा कहती जरा सूंघना। दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं है जो खुशबू मदीने वाले के पसीने में है। और यारो देखो ना किसी दरवेश ने क्या कहा है। वो कहता है मदीने में सुकून क्यों है, करार क्यों है, खुशबू क्यों है, ठंडक क्यों है, दिल क्यों लगता है। वो कहते अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गली। तो अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर वो जबर न करे, वो आए ना मेरे रसूल से प्यार करे, आए ना हुजूर की सादगी से प्यार करे, आए ना मेरे रसूल करीम के बज़ाहर कच्चे घर से प्यार करे, आए ना हुजूर के सादे लिबास से भूखने वाली नूरानियत से प्यार करे। अगर हुस्न से प्यार करना है तो सहाबा कहते हैं हमने देखा है चांद चमकता, हुजूर के मुकाबिल चमकता देखा है। लेकिन हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं मुझसे कसम ले लो, जब हुजूर के चेहरे नूर से कपड़ा हटता था चांद मुंह छुपाता फिरता था। हमने देखा है चांद की रोशनी मान पड़ती थी चांद की रोशनी। अरब के चांद जब वो किसी ने ना कहा है क़यामत के नक्शे सारे बदल जाने हैं, तो कैसे बदलेंगे? हुजूर की दुआ से, नबी पाक की सिफारिश से, या सारे अंबिया मिल के अर्जियां पेश करेंगे? तो नहीं, उसने कहा बस हुजूर में जब आ जाना है ना, जब वो बस ना एक बुक्कल मार के ना, वैसे भी सोना पेस बटावने जानदा है, जब आ जाना है ना उन्होंने, तो आने से ही ना चेहरा ही देख के वो तब्दीली आ जाएगी माहौल में। कुछ लोगों के आने से ही तब्दीली। मुझे एक दोस्त मदीने में कहने लगे बड़ी बातें सोच के आया था, बड़ा कुछ ज़हन में था, यहाँ आके हुआ क्या है? मैंने कहा इत्थे नहीं बोलिया जाता, नाले इत्थे ना दो बातें हैं, एक तो बोलिया जाता नहीं ते दूजी गल है बोलने की लोड़ ही नहीं रही। मेरे इमाम ने कहा लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लब वाह है, चुप, बोलना नहीं। लब वाह है, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियां। अखा मीट लो, चुप कर जाओ तो झोली अगे करो, दसो चाहिए कीजिए। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, इतनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर आए ना मेरे रसूल पाक से करे, आए ना हुजूर सैयद आलम से करे, आए ना रसूल करीम की रानाइयों से करे। कुछ लोगों को ना उस बंदे से प्यार होता है जिसके पास इल्म और हिकमत बड़ी होती। कहते हैं यार बंदा दाना है, बड़ा खूबसूरत शायर है, बड़ा अच्छा अदीब है, बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा फसीह व बलीग है, बड़ी आला बात करने वाला है, बड़ा बाकमाल है। और दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलरों को पढ़ने वालों और कायनात के बड़े बड़े अदीबों के जुमले रटने वालों और बड़े बड़े शेर व अदब की दुनिया में जीने वालों और बड़े बड़े फसीह व बलीग घंटों तक एक उन्वान पर बोलने वाले लोगों की बातें सुनने वालों, आओ
अगर इल्म और हिकमत से प्यार करना है तो उसके साथ प्यार करो जिन्होंने दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं पर सारी कायनात को पढ़ा दिया है। रब कहता है हबीब आप जो जो नहीं ना जानते थे सारा ही आपको सिखा दिया है। हुजूर जमीन पे बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये सवाल, रसूल करीम उठे, इमामा सीधा किया, मेरे महबूब ने चादर ओढ़ी, कंधे पे रखी, मिंबर पे आके बैठ गए, फरमाया जो दिल करता है पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, पूछो ना जिसके जो जी में आता है। हजरत उमर कहते हैं ज़ोहर से असर तक बयान किया, नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरिब तक हुजूर ने बातें बताई, फिर नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरिब तक कहते हैं करीम ने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आए जिसने हिकमत सीखनी है मदीने वाले से सीखे, आए जिसने सिपा सालारी सीखनी है मेरे रसूल से सीखे, आए जिसने क़यादत के उसूल सीखने हैं हुजूर से सीखे, आए जिसने आला उस्ताद बनना है सुफ़ा यूनिवर्सिटी के उस्ताद से सीखे, आए जिसने आकाई के अदाब सीखने हैं वो आए ना सीखे। अगर ना समझ आए तो करोड़ों रखने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के आका की शफकत उनके साथ भी उसी तरह की है, और जिनकी जेब ज़ाहिरी तौर पर खाली है उन बिलाल के साथ भी महबूब का ताल्लुक उसी तरह का ही है। आए ना देखे आए, और रसूल करीम ने ना सिर्फ लोगों को इस तरह से हिकमत सिखाई है, इस तरह की हिकमत सिखाई है कि सिर्फ उन्हें आदाबे जिंदगी और तौर तरीके नहीं बताए, हुजूर ने इस तरह की दरवेशी की, इस तरह की सादगी बताई कि अमीरों का फकीर होने को दिल करने लगा, और फकीर समझ लगे कि हमसे बड़ा तो बादशाही कोई नहीं, हमसे बड़ा तो तगड़ा ही कोई नहीं। ये देखो ना हजरत उस्मान गनी अमीर बाप के बेटे, हजरत मुसअब इब्ने उमैर अमीर माँ के बेटे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर, लेकिन कभी मस्जिद का झाड़ू, कभी हुजूर के दरवाजे की नौकरी, और सजना अवेख यार मनौन दी खातर असां की पेश बटाए। इन अमीरों को ना फकीरी के ढब सिखाए, और ये है बिलाल हबशी, कहते मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, दादा परदादा गुलाम, घर सारे गुलामों के, लेकिन मैं वो वाला गुलाम हूँ कि कभी आ जाऊँ ना महफिल में तो उमर जैसा बंदा उठ के खड़ा हो जाता है, और मेरा बाजू थाम के लाता है। उमर जो धरती पे दुर्रा मारे तो जलजले रुक जाए, उमर ऐलान कर दे तो दुनिया कांप जाए। बिलाल कहते हैं मेरा बाजू थामते उमर, अपनी जगह पे बिठाते, मैं रो पड़ता, मैं कहता सोने गरीब माँ का पुत्र, मेरा अब्बा चक्की चलाता था, काम करता, इतना एहसास। तो कहते सैयदना उमर कहते पहले की बात है, अब तो हुजूर के गुलाम हो ना, अंत सैयदुना। बिलाल जब से तो मदीने वाले का गुलाम बना है, हम सब का तो सरदार हो गया है, तू सरदार है हमारा। इल्म हिकमत यहाँ से सीखो, यहाँ से सीखो। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फलाने से इसलिए प्यार है कि उसके पास दौलत है, पैसे हैं, उसके पास इख्तिदार है, मुझे मोहब्बत इसलिए है कि वो बंदा जो है वो बड़ी ताकत रखता है, किसी मुश्किल में काम आएगा, मुझे इसलिए मोहब्बत है कि उस शख्स के खजाने बड़े भरपूर हैं, तो कहीं मेरी मुश्किल हल कर देगा। पैसे वाले लोगों से भी तो लोगों को प्यार हो जाते हैं, वो कहते हैं ये मेरे ऊपर एहसान कर देगा, कोई नेकी कर देगा, कहीं मुश्किल आ जाएगी तो काम आएगा। तो अगर खजाने वालों से ही प्यार करना है तो फिर उनसे तो ना प्यार करो, जिनके पास खजाने तो हैं दिल कोई नहीं, जिनके पास तजोरियां तो हैं बांटने का जज्बा कोई नहीं, जिनके पास बैंक बैलेंस तो है लेकिन उनके पास मुरब्बत का हुस्न कोई नहीं, जो बातें तो बड़ी रखते हैं लेकिन
सीने में गरीब का दर्द नहीं रखते, फिर उनसे मोहब्बत करने की क्या जरूरत है? फिर उनसे प्यार ना करें। जो सही बुखारी में मौजूद है, मदीने वाले महबूब फरमाते हैं, मैं सो रहा था, अल्लाह करीम ने खजानों की कुंजियां ही मुझे अता फरमा दी। फरमाया जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे दोनों हाथों में ला के रख दी हैं। अल्लाह ने महबूब को महबूब बना लिया है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रब करीम ने कुंजियां ही दे दी। मेरे आला हज़रत फरमाने लगे, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ। ये शेर मेरे इमाम का है, इसे ज़ाया ना करना। और देखो कहते क्या है, एक होता है जुज़, एक होता है कुल। आला हज़रत कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल। इनमें से कोई शय भी थोड़ी नहीं, ना असालत थोड़ी, ना इमामत थोड़ी, ना सियादत थोड़ी, ना इमारत थोड़ी। कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें रब के पास है, पर वो सारी उसने अपने रसूल को अता फरमाई। खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। मैं आपसे अर्ज करूं, दुनियादारों से मांगे ना कभी। वैसे भी मेरा तो तजर्बा यह है कि रोटी आप कहेंगे तो बंदा खिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, दावत भी करेगा, आना जाना भी ठीक हो जाएगा। सोसाइटी में कभी ऐसा करे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए ना सिर्फ 50,000 की, तो वो तलख हो जाता है। कहता है इनू सारे काम करने चाहिए सन, मेरे पैसे की गल कदे ना करता, सारे काम आप करा ले। कहते हैं कोई हुक्म हुआ तो बताना। भाई हुक्म आपको अब किसी ज़रूरत के लिए किसी ने को बात करनी है, आप सारे काम करा ले। लेकिन अगर किसी शख्स से आप ये कहें ना कि यहाँ ज़रूरत भी पूरी कर दो, तो कहते हैं ये ना गल करो, ये तो मसला ही ठीक नहीं। बल्कि वो मैं बड़ा पुराना बड़ी देर से कह रहा हूँ कि अगर कभी खुदा ना करे किसी बंदे से वैसे ही ज़रूरत पड़े, अल्लाह अपना फजल ही करे। लेकिन शुरू से देखते आ रहे हैं जो बड़े दावे करते हैं ना, हुक्म करना, हुक्म करना, हुक्म करना, जब हुक्म की बारी आती है तो कहते राती दसना असी सवेरे ही मुंडा टोरिया है। तो बिल्कुल हुक्म उसी वक्त गोल मटोल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, किसी और से भी मांगोगे तो इज्जत में कमी आएगी, और अगर हुजूर से मांगे ना, हुजूर अता भी करते हैं और इज्जत भी अता फरमाते हैं। हुजूर साथ इज्जत भी अता करते हैं, इज्जत भी साथ देते हैं। और रसूल करीम से जिसने मांगा है ना, हुजूर ने झोली भर के दिया है। हुजूर की बारगाह से वो भी मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। हाफजा कहीं से मिलता है जी,